Okay, so unitary elastic, unitary means equals to 1. So whenever the PED will be unitary elastic, the value of the PED guys would be always equal to 1. So what do you mean by that? एक वैल्यू 1 कब आ सकती है? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का चेंज इक्वल हो, which means that the percentage change in price is exactly equal to the percentage change in quantity that is being demanded. So for example, if you reduce the price of your product, or let's say if you increase the price of your product by 10%, आपने 10% से अपनी प्राइस बढ़ाई, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितने परसेंट से रिड्यूस हो जाएगी? एग्जैक्टली 10%. और जब भी ऐसा होगा, जब क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में इक्वल चेंज आएगा, इक्वल प्रोपोर्शनेट चेंज आएगा, तो पीडी की वैल्यू हमेशा 1 आएगी. सर नेगेटिव साइन क्या मतलब समझ नहीं आया. नेगेटिव तो हमेशा पीडी की वैल्यू आती ही आती है, बिकॉज इट शोज दैट प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इन्वर्सली रिलेटेड. अगर प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी हैज़ टू फॉल, तो ऑब्वियसली द वैल्यू विल बी नेगेटिव, राइट? And so is the case if price is falling. So basically remember that whenever there is an equal proportionate change in quantity demanded due to a change in price, there is an equal proportionate change in quantity demanded due to a change in price, the value of PED will always be equal to unity. It means that there is I'm writing it down, it means that there is an equal proportionate change, there is an equal proportionate change in quantity demanded to a change in price, right? So for example, ये देखें, इसका मतलब क्या, ये कब होता है? ये होता है कि जब अराफ 5% से आपकी प्राइस, अगर आपकी प्राइस इज फॉलिंग बाय 15%, लेट्स से यू हैव अ प्रोडक्ट, यू रिड्यूस द प्राइस बाय 15%, but quantity demanded exactly rises by 15%. So if there is a same change in quantity demanded as compared to the change in price, the PD value will be equal to 1. इसी तरह अगर आप प्राइस को बढ़ा रहे हैं बाय 10% और क्वांटिटी में चेंज भी 10% है, तो PD की वैल्यू 1 आएगी. ये ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द ग्राफ फॉर अ PD दैट इज यूनिटरी इलास्टिक, द ग्राफ फॉर अ PD दैट इज यूनिटरी इलास्टिक गाइज इज ड्रॉन लाइक अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. दिस इज इंपॉर्टेंट. ये आप लोगों को, यू नीड टू परफेक्ट द शेप. अक्सर बच्चे गलत बनाते हैं. दिस इज हाउ यू ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. This is the way you are going to draw a rectangular hyperbola. This is a rectangular hyperbola, right? You can also draw it like this. This is basically a rectangular hyperbola. You're not going to draw it like this. Demand curve ऐसे नहीं बनाएंगे इसका. For a rectangular hyperbola, the shape has to be like this, right? This is a rectangular hyperbola. A rectangular hyperbola will always have a PD that is equals to 1. Understood? Such that the percentage change in price is always equal to the percentage change in quantity that is being demanded. So for example, you need to understand, you can see from the diagram as well that I have drawn a rectangular hyperbola, and if the price is rising by 10%, the quantity that is being demanded is only falling by 10%. This is again showing that the value of PD will always be equal to 1. So what is the percentage change in price? 10%. Price is rising, quantity demanded is falling by 10%, which means that the PD is always equal to 1. It's equal to unity. ठीक है, unity means 1. So अब इसमें important चीज़ क्या है, which is very important from MCQ's perspective as well. Remember that whenever the PD will be equal to 1, whenever the PD will be equal to 1, that is demand curve इसका कैसे बनेगा? It will be drawn like a rectangular hyperbola. जब भी आपके पास PD 1 आएगी, right? What is going to happen? What will happen to the total revenue and total expenditure? The total revenue and total, what is total revenue? Total revenue क्या होता है? Total revenue is the sales of the firm जो हमें आ रही होती है from selling the product. How do you calculate total revenue? Price times quantity, right? So for example, if you're selling a unit for 10 rupees and you're selling 1000 units, so what is the total revenue? It's 10,000. What is total expenditure? Total expenditure किसके लिए होता है? कंज्यूमर के लिए होता है. So if the consumer is buying, यही फॉर्मूला अप्लाई होता है कंज्यूमर के परस्पेक्टिव से. So if the consumer is buying 1000 units which the producer is selling to him, and he's buying those 10,000 units at a price of 10 because that's the market price. So 10 जो है वो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर है, वही 10 प्रोड्यूसर का रेवेन्यू है. टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ रहा होगा? वो भी 10,000 आ रहा होगा. So remember कि total revenue की जो value होती है that was always equal to total expenditure value as well, because total revenue is from the firm's perspective, total expenditure is from the consumer's perspective, right? Understood?
Now, one thing that you need to understand, and that is very important from in this PD ka thing is, if it's unity, that what do you think will happen to total revenue and expenditure if the price changes? What will happen to total revenue and expenditure if price changes? The total revenue and expenditure always stays the same. कोई चेंज नहीं आएगा. रायन बोर्ड पे देखो, टोटल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर विल ऑलवेज स्टे द सेम. क्या मतलब? अब इसका मतलब ये है, इधर देखो, अगर आप अपनी कीमत बढ़ा रहे हो प्रोडक्ट की 10% से, तो लोग कम आएंगे ना, मतलब बिल्कुल कम आएंगे. अगर तुम ये सोचते हो कि प्राइस बढ़ाने से मेरा एक यूनिट ये मेरा प्रोडक्ट है और ये महंगा हो जाएगा, तो मेरे पास ज़्यादा पैसे आएंगे. अब तो जितने से तुम्हारा प्रोडक्ट महंगा होगा ना, जितने अमाउंट से, जितने परसेंट से, कितने परसेंट से महंगा हो रहा है? इधर 10 से महंगा हो रहा है. प्राइस 10 से बढ़ रही है तो 10 से प्रोडक्ट महंगा हो रहा है. जिस परसेंट से प्रोडक्ट महंगा कर रहे हो ना तुम, उतनी ही परसेंट से 10% फॉल भी आ रहा है. क्वांटिटी डिमांडेड उतने ही अमाउंट से गिर रही है. तो वो जो प्राइस बढ़ने का अफेक्ट है ना, वो ऑफसेट हो जाएगा विद द क्वांटिटी गिरने का अफेक्ट. प्राइस बढ़ने का अफेक्ट विल बी, एग्जाम में कैसे लिखेंगे, विल बी ऑफसेट बाय द क्वांटिटी गिरने वाला अफेक्ट. तो इससे क्या होगा, सच दैट जब जिस परसेंट से तुम प्राइस बढ़ा रहे हो और अगर उसी परसेंट से तुम्हारी क्वांटिटी डिमांडेड भी गिर रही है, तो टोटल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर में देयर विल बी नो चेंज. नो चेंज इन टोटल रेवेन्यू, नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर बाय द कंज्यूमर. यही मैंने लिखा हुआ है, मैंने एग्जैक्टली ये चीज़ यहाँ लिखी है. अ चेंज इन प्राइस रिजल्ट्स इन एन इक्वल परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड such that the total revenue and the total expenditure remains the same. Because if the price is rising by 10%, so you need to understand that if price will rise, then revenue should rise per unit. हर यूनिट पे रेवेन्यू राइज हो जाना चाहिए. अगर आप एक प्रोडक्ट, एक यूनिट 5 रुपये का बेच रहे थे, अब आप एक यूनिट 8 रुपये का बेच रहे हैं, तो ₹3 से आपका रेवेन्यू पर यूनिट सोल्ड राइज हो जाना चाहिए, विच मीन्स कि ज़्यादा रेवेन्यू आना चाहिए. लेकिन मसला ये है कि डिमांड भी तो इक्वल प्रोपोर्शन से गिर रही है. इक्वल प्रोपोर्शन, तुम ये नहीं लिख कर आओगे आराफ कि डिमांड गिर रही है, वो तो हमें भी पता है. इक्वल प्रोपोर्शन से गिर रही है कि क्या होगा, यही लिखा हुआ है टोटल रेवेन्यू के द राइज इन रेवेन्यू right is offset by an equal fall in revenue due to price and quantity being changed in equal opposite proportions. The rise in revenue is offset by an equal fall in revenue due to the price and quantity being changed in equal opposite proportions. I have written exactly the same thing that I just told you guys. इसी तरीके से अगर आपकी कीमत गिर जाती है, सपोज करें ये मग है, ये मग अब अगर मैं सस्ता कर दूँ, ₹10 का था, अब मैं इसको ₹7 का कर दूँ, तो कल को मुझे अगर लेट्स सपोज ये बोलते हैं कि सर आपने सस्ता कर दिया मग, अगर आप एक मग बेचेंगे, पहले कितने आते थे, 1 मग बेचने पे ₹10 आते थे, अब इसी मग पे ₹7 आएंगे, तो हर मग पे अब ₹3 कम आएंगे. हर मग सेल करने पे अब ₹3 कम आएंगे. तो हम इस दफ़ा इस साल लेस रेवेन्यू जनरेट करेंगे ऑन ईच मग वी सेल. आपको इस बात की लग गई टेंशन कि आपने 10 से 7 कर दी प्राइस. कितने परसेंट डिक्लाइन हुई है अगर 10 से 7 हुई है प्राइस? तो 3% आपने प्राइस डिक्लाइन कर दी, तो 3% 30% आपने प्राइस डिक्लाइन कर दी. So it means, guys, don't talk. It means that on every mug that you sell, 30% कम रेवेन्यू जनरेट होने वाला है. तो मैं आराफ को बोलूँगा तुम क्यों टेंशन लेते हो, रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आएगा हमारे, क्योंकि हमारी पीडी जो है वो इक्वल टू 1 है. अगर मेरी प्राइस 30% से कम हो रही है तो माना कि 30% से मेरा रेवेन्यू डिक्लाइन हो जाएगा, लेकिन तुम ये भी सोचो क्वांटिटी जो मैं सेल करूंगा मग्स की, अब वो एग्जैक्टली 30% से इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से 30% ज़्यादा मग्स बेचने पे 30% बेचने पे मेरा रेवेन्यू दोबारा से 30% से उतने ही अमाउंट से बढ़ जाएगा. तो ये ऑफसेट हो जाएगा. दिस फॉल विल बी ऑफसेट
by this rise in revenue. This fall in revenue because of a fall in price will be offset by a rise in revenue due to rise in quantity being sold or demanded by the consumer. समझ आ गई बात? जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है? जब भी ऐसा होता है, so two things you need to remember. First of all, a rectangular hyperbola is drawn. Second of all, PD is equals to 1, that is unitary. And third of all, equal proportion. Yes. And fourth, the total revenue and expenditure remains exactly the same. Total revenue and expenditure remains exactly the same. ठीक है? समझ आ गई बात? तो हमारा ये डायग्राम आई थिंक आप लोग बना लें. ये डायग्राम हमारे पास क्या शो कर रहा है? इधर देखें. व्हाट इज द ग्रीन एरिया शोइंग अस? राइज इन रेवेन्यू स्लैश एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू फॉर द फर्म, एक्सपेंडिचर फॉर द कंज्यूमर, बिकॉज कंज्यूमर खरीद रहा है ना. सो अगर रेवेन्यू राइज हो रहा है ग्रीन एरिया से, तो ब्लू एरिया से उतने ही प्रोपोर्शन से फॉल भी हो रहा है.